حاصل کرنا ہے۔ بلاول بھٹو نے حکمرانوں کو منافق قرار دے دیا، کہتے ہیں عمران خان کے دور حکومت میں کرپشن کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے، چینی آٹا چوروں کو NRO دیا گیا، وزیر اعظم نے خود کشمیر کا سودا کر لیا اور ہمیں مودی کے بیانیے کا تانا دیتے ہیں، کلبھوشن کو وکیل کر کے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان میں خطاب۔ گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا، عوام کا درینہ مطالبہ پورا کر دیا، اسکاؤٹس اور شہداء کے قربانیاں دے کر خطہ آزاد کروایا، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کی گلگت بلتستان کی قومی دن کی تقریب میں شرکت، یادگار شہداء پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں آنے والے دنوں میں قوم دیکھے گی کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے۔ بلیک میل کرنے میں ناکامی پر اب آرمی چیف اور ISI چیف پر بندوقیں تان لی گئی، چور اور ڈاکو مل کر آرمی اور ISI سربراہان کے خلاف بول رہے ہیں، اس کا مطلب دونوں کا بالکل ٹھیک انتخاب ہوا۔ گلگت بلتستان صوبہ بنانا سیاسی نہیں، سیکیورٹی ایشو، افسوس گلگت کو صوبہ بنانے کے لیے الیکشن کا موقع استعمال کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کی وزیر اعظم پر تنقید، کہتے ہیں صوبہ بننے کے بعد گلگت بلتستان کے لوگوں کو ٹیکس دینا ہوگا، اب یہ آزادی ختم ہوگی، ایک ہاتھ سے لیں گے تو دوسرے سے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ گلگت بلتستان پر پیپلز پارٹی کے تحفظات، شیری رحمان کہتی ہیں وزیر اعظم اور وفاقی وزیر غیر قانونی طور پر گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں، عوامی اجتماعات کے دوران ترقیاتی منصوبوں کا اعلان ہو رہا ہے، انتخابی شیڈول کے بعد اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وزیر اعظم اور وزراء کی طرف سے یہ کھلی دھاندلی ہے۔ سردار ایاز سعدی کہتے ہیں ان کے بیان کو افواج پاکستان کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں۔ عبدالعلیم خان نے اپنی سیاست کے لیے مودی کے بینرز لاہور کی سڑکوں پر لگوائے۔ عمران خان کی نااہلی ہے کہ بھارتی پرچم اور مودی کی تصاویر پاکستان میں لگوا دی گئیں، یہ کہاں کی حب الوطنی ہے کہ بھارت کا پرچم پاکستان میں لگا دیا جائے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں دشمن کی خواہش ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، چند لوگ ذاتی مفاد کو ملک پر ترجیح دے رہے ہیں، 27 فروری کو صرف افواج اور حکومت نہیں، ہر پاکستان کی جیت تھی، لیکن کچھ لوگ پاکستان کی جیت متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں سیاست اور جرم کو الگ رکھنا ہوگا، قوم نواز شریف کی مفادات اور قومی مفادات میں فرق سمجھتی ہے، نواز شریف کے حواریوں کو بھی یہ ماننا پڑے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف جمہوریت کی جیم اور نظریاتی کے نون سے بھی ناواقف ہیں، جب مال بنانے کا موقع نہ ملے تو ملک کو بھی بیچنے سے دوریک نہیں کریں گے، ان کے نزدیک جمہوریت صرف آل شریف کی نسل در نسل غلامی اور مال بناؤ کا نام ہے، یہ جمہوریت کے جعلی امبرداروں کی اصلیت ہے۔ چودھری پرویز الہی کی حکومت کی گندم پالیسی پر شدید تنقید، کہتے ہیں 1600 روپے من والا لالی پاپ حکومت اپنی جیب میں رکھے، کسان خوشحال ہوا تو پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان کا کسان خوشحال نہیں تو ملک کی اکانومی پر برا اثر پڑے گا، دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے کسانوں کو مراعات دینا ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں ہم مولانا کی طرح دھرنا نہیں دیں گے، جب دھرنا دیں گے تو اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے، حکومت کی سونامی گزر گئی، اب آپ عوامی سونامی دیکھیں گے اور آپ کو اسلام آباد میں بھی پناہ نہیں ملے گی، پاکستان امریکی نظام کے لیے نہیں اسلامی نظام کے لیے بنا تھا۔
पाकिस्तान पुलवामा हमले में मुलव्विस नहीं, भारतीय इल्जामात मनगढ़ंत हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक मौक़िफ़, कहा पुलवामा हमले का बराह रास्त फायदा बीजेपी हुकूमत ने उठाया। अपनी कमजोरी और नाकामियों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना ही बीजेपी क़यादत की खसलत है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बीजेपी के इंतखाबी मुहिम का हिस्सा रहा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 17 मरीजों का इंतकाल, अमवात 6,823 हो गई। मजीद 973 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीज 3,33,970 तक जा पहुंची। 3,14,555 सेहतयाब, 12,592 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 12,02,000 हलाकतें, 4,65,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,36,000, ब्राजील में 1,60,000, भारत में 1,22,000, मैक्सिको में 92,000, रूस में 28,235 और सऊदी अरब में 5,402 अमवात। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से कबल सियासी पारा हाई, सदर ट्रंप और जो बाइडन के एक दूसरे पर तनकीदी निश्तर। ट्रंप ने जो बाइडन को कीड़ों से तशबीह दे दी, जो बाइडन ने ट्रंप को रूसी सदर का कुत्ता करार दे दिया। कनाडा में हैलोवीन त्यौहार में तलवार बरदार का हमला, 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल, पुलिस का मुल्ज़िम बारे तफसीलात फराहम करने से इनकार। कोरोना वायरस के केसेस में कमी, सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों को उम्रा अदायगी की इजाजत दे दी। SOPs पर अमल करना लाजिम। गैर मुल्की ज़ायरीन 3 रोज होटल में क्वारंटीना करना होगा। मखसूस बसों के जरिए मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी मुंतकिल किया जाएगा। अमरीकी दवासाज कंपनी का कोरोना वैक्सीन टेस्ट करने का ऐलान। वैक्सीन का तजुर्बा 12 से 18 साल के बच्चों पर करने का फैसला। वैक्सीन की तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो गए। अमरीकी दवासाज कंपनी का दावा। ग्रीन शर्ट्स दूसरे वनडे में भी फातेह सीरीज। ग्रीन शर्ट्स के नाम जिम्बाब्वे 206 रन बनाकर आउट। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया। 5 विकेटें लेने वाले इफ्तिखार अहमद मैन ऑफ द मैच करार। तीसरा वनडे 3 नवंबर को खेला जाएगा। और अलीम डार सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस सुपरवाइज करने वाले अंपायर। अलीम डार ने 210 वनडे मैचेस में अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम दिए। अलीम डार कहते हैं टेस्ट और वनडे के लिस्ट में टॉप पर आना एजाज की बात है। दुश्मन मुल्क का भी वज़ीर आज़म खुद चलकर पाकिस्तान आता है। शेर जवान तहरीक नौजवानों के ख्वाब पूरे करने की तहरीक है। मकसद गुलामी की जंजीरों से आजादी हासिल करना है। जब RTS बिठाया जाता है तो पूरा मुल्क बैठ जाता है। जब RTS बिठाया जाता है तो मईशत बैठ जाती है। जब RTS बिठाया जाता है तो अदल का निज़ाम बैठ जाता है। और जब अदल का निज़ाम बैठ जाता है तो नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले आते हैं। तब अरशद मलिक जैसे जजेस को इस्तेमाल किया जाता है और काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज जैसे इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के हामिल जजेस की किरदार कुशी की जाती है। पाकिस्तान के शेर जवानों, आपको अपनी बहन मरियम नवाज के साथ एक अहद करना है और हाथ उठाओ कि आज आपने अहद करना है कि आइन और कानून पर चलकर वोट की इज्जत करवाओगे। आपने अहद करना है कि आप अपनी राय, अपना वोट और अपने हक की निगहबानी करोगे। आज आपने मेरे साथ अहद करना है कि आपने जमहूरी और पुरअमन रास्ते पे चलकर अपने हक के लिए आवाज उठानी है। आपने अपने मुंतखब नुमाइंदों के लिए आवाज उठानी है और आप किसी को इजाजत नहीं दोगे कि जो लोग आपके वोट से आते हैं उनका इस्तेहसाल कोई और कर सके।
آپ ہی ان کے مالک ہو, آپ ہی ان کے جوابدہی کر سکتے ہو. آپ کے ووٹ سے وہ آئیں گے, آپ کے ووٹ سے وہ جائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکمرانوں کو منافق قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں کرپشن کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. چینی آٹا چوروں کو این آر او دیا گیا. گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا, کٹ پتلی سمجھ رہے ہیں, بی بی کی تصویریں ہٹا کر انہیں عوام کے دلوں سے بھی نکال دیں گے. وزیراعظم نے خود کشمیر کا سودا کر لیا اور ہمیں مودی کے بیانیے کا تانا دیتے ہیں. کلبھوشن کو وکیل کر کے دیا. ذوالفقار علی بھٹو نے پاک چین کی دوستی کی بنیاد رکھا. پاکستان کا اور چین کا دروازہ گلگت بلتستان سے کھلوایا. ہمارا پچھلے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سی پیک کی بنیاد رکھا تاکہ پاکستان کے پسماندہ علاقے کی قسمت ہم بدل سکے, تاکہ ہم پاکستان میں معاشی انقلاب لے آ سکے. اور آج کل ہر کوئی سی پیک کا اونرشپ لینا چاہتے ہیں. وہ جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ بھائی آپ چائنا کیوں اتنا دفعہ جا رہے ہیں, اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سی پیک شروع کیا. اب عمران بھی کہتا تو ہے کہ وہ سی پیک پہ کام کرے گا, لیکن آپ نے دیکھا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا سی پیک بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پسماندہ علاقہ کو فائدہ ہو. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ سی پیک صرف ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی وجہ سے, گلگت بلتستان کے سرحدوں کی وجہ سے اور بلوچستان کے گوادر کی وجہ سے یہ سی پیک ہے. یہ گیم چینجر ہے. یہ نااہل نالائق لوگ, ان کا سمجھ میں نہیں ہے کہ سی پیک کیا ہے. سی پیک پہ اگر آپ نے کام کرنا تھا تو پہلے اب گلگت بلتستان کے مقامی عوام کو اس سے فائدہ دلواتے, اب فاٹا کے عوام کو اس سے فائدہ دلواتے, اب بلوچستان کی عوام کو اس سے فائدہ دلواتے. ایسا کیوں ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارے پاس, پاکستان کے پاس سی پیک بنا ہے, ان لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو سب سے پہلے پرائیورٹی سی پیک پہ میرے گلگت بلتستان کے بہنوں اور بھائیوں کے ہو. وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں عوام کا درینہ مطالبہ پورا کر دیا. فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا. وزیراعظم کا دیامر بھاشا ڈیم سائٹ کا دورہ منصوبے کو پاکستان کی معیشت کے لیے اہم ترین قرار دے دیا. وزیراعظم عمران خان کا گلگت بلتستان کے قومی دن کی تقریب میں شرکت, یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کیا اور کہا گلگت کے اسکاؤٹس اور شہداء نے قربانیاں دے کر یہ خطہ آزاد کروایا, جس پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ماضی میں مختلف وجوہات کی بنا پر گلگت بلتستان کو باقی پاکستان سے کاٹ کر پسماندہ رکھا گیا, تاہم موجودہ حکومت تمام پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. وزیراعظم نے دیامر بھاشا ڈیم سائٹ کا دورہ کیا, ڈیم پر جاری کام کا جائزہ لیا, کام کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار کیا. چیئرمین بابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے بریفنگ دی. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ڈیم سے روزگار کے مواقع ملیں گے اور معیشت مزید مستحکم ہوگی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مجھے بلیک میل کرنے میں ناکامی پر اب آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف پر بندوقیں تان لی گئیں. آنے والے دنوں میں قوم دیکھے گی کہ کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے. گلگت بلتستان میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایاز صادق کی شکل میں میر صادق اور میر جعفر دیکھ رہے ہیں. چور اور ڈاکو آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے خلاف بول رہے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دونوں کا بالکل ٹھیک انتخاب کیا ہے. دنوں میں ایک پورا پلان بنا ہوا ہے. ہمارے وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں, وہ پوری طرح آج ہماری پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ڈسکریڈٹ کرنے کا
उनको प्रोग्राम बनाया हुआ। ये आज सब मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ ये क्यों हो रहा है। मेरा जो पहला, जब मैं वजीर आजम बना तो जो मेरा पहला खिताब था, मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये इकट्ठे मेरे खिलाफ इसलिए होंगे कि इनको पता है कि मेरे तो 24 साल की कैंपेन ही ये थी कि इस मुल्क में करप्शन का सामना करें। जब तक करप्शन है मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने दूसरी बात कही, जिस चीज में पाकिस्तान का फायदा है उस चीज में इनका नुकसान है, और जिस चीज में इनका फायदा है वो पाकिस्तान को नुकसान है। ये चाहते हैं कि इनकी सारी करप्शन जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके गए हैं, किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इनको एनआरओ दे दूं, यानी कि इनको माफ कर दूं जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया। पाकिस्तान का फायदा एक चीज में है कि यहाँ कानून की बालादस्ती कायम हो, ताकतवर और कमजोर के लिए कानून बने। मैंने कहा कि इनका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, और ये आज साबित हो रहा है। सब इकट्ठे भी हो गए और पूरी तरह ब्लैकमेल, पहले इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, माशियत पे, इलेक्शन जी गलत हो गया, हमने कहा खोल दो इलेक्शन, उधर से भी भाग गए। माशियत, अल्लाह का शुक्र है, एक वो मुल्क के छोड़ के गए थे जिसका दिवालिया निकला हुआ था, अल्लाह का करम है कि वो भी सही तरफ लग गया है। उसके बाद कोरोना के ऊपर उन्होंने कोशिश की। आज दुनिया एक्नॉलेज करती है कि जिस तरह पाकिस्तान कोरोना से निकला है शायद ही कोई और मुल्क निकला हो। फैटफ के ऊपर जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को फैटफ पे ब्लैक लिस्ट करवाएं, उस पे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर कहते हैं अफसोस गिलगित को सूबा बनाने के लिए इलेक्शन का मौका इस्तेमाल किया गया। वजीर आजम पाकिस्तान को इस चीज से मेरा होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़ेर तमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुबारक पेश करते हैं। गिलगित के लोगों ने बेसरोसमानी के आलम में जंग लड़ी थी। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना सियासी नहीं, सिक्योरिटी इशू है और कश्मीर इलाकाई तनाज़ा नहीं, रायशुमारी का मामला है। राजा फारूक हैदर ने कहा कि सूबा बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को टैक्स देना होगा। अब ये आज़ादी ख़त्म होगी, एक हाथ से लेंगे तो दूसरे से देंगे। उधर पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौराए गिलगित बल्तिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। शेरी रहमान कहती हैं वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा गैर कानूनी तौर पर गिलगित में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। शेरी रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी कवायद की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। वज़रा के बाद वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन मुहिम चलाने गिलगित बल्तिस्तान आए। अवामी इज्तिमात के दौरान तरक्याती मनसूबों का ऐलान हो रहा है। इंतखाबी शेड्यूल के बाद इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म और वज़रा की तरफ से ये खुली धांधली है। सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि उनके बयान को अफवाज पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है जो मुनासिब नहीं। आवाम जानते हैं कि हुकूमत के बारे में बात सिक्योरिटी इदारों पर डाली जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब्दुल अलीम खान ने अपनी सियासत के लिए मोदी के बैनर्स लाहौर की सड़कों पर लगवाए। इमरान खान की नाअहली है कि भारत परचम और मोदी की तस्वीर पाकिस्तान में लगवा दी गई। ये कहा कि हुब्बुल वतनी है कि भारत का परचम पाकिस्तान में लगा दिया जाए। अयाज सादिक ने कहा कि एनआरओ मांगा ना इमरान खान से रियायत चाहते हैं। आवाम बेवकूफ नहीं कि हुकूमत के बारे बात को सिक्योरिटी इदारों पर डाला जाए। उधर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं सियासी दुकान चमकाने के लिए कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई इंतहाई काबिल अफसोस है। पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को कौम कदर की निगाह से देखती है। सवाबी में एक तकरीब से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा माइशत मस्बत समत में जा रही है। साबिक हुकूमतों की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान IMF के पास गया। माजी की हुकूमतों की नाकाम पॉलिसियों के बायस आज आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मौजूदा हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की बदौलत डॉलर नीचे आ रहा है।
और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस आर्जी महंगाई का खात्मा हो जाएगा। असद कैसर ने कहा कि सवाबी में सेहत, तालीम, बिजली, सुई गैस और खेलों के मैदान में खातिर खा इस्लाहात और इकदाम उठाए हैं जिनके समरात से सवाबी के अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। सवाबी में कैडेट कॉलेज भी तामीर किया जा रहा है। पूरे सूबे के अवाम को सेहत इंसाफ कार्ड फराहम किया जाएगा जो मुल्क की तारीख में एक बहुत बड़ा कारनामा है। असद कैसर ने कहा कि हम अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की बेहतर मफाद के लिए सियासत कर रहे हैं। जब हमने मुल्क की भाग दौड़ संभाली तो माशत मफलूज और खजाना खाली मिला था। इमरान खान की बेहतरीन पॉलिसियों की बदौलत आज मुल्क सही समत में जा रहा है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी कहते हैं पीडीएम की जमातों को अपने एजेंडे का पता नहीं है, वो कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अपोजिशन जमातें इस तरह की हथकंडों से ना मुल्क और ना आवाम की खिदमत कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने एक बयान में कहा कि पीडीएम में शामिल जमातें पहले एक दूसरे के खिलाफ थी। पीडीएम के आपस में इख्तलाफात बाहर आ रहे हैं और आपस में एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के बयानात अफसोसनाक और मुल्क की वक़ार के खिलाफ हैं। कासिम सूरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिश है कि अदालतों के मफरूर मुल्जिम को लंदन से वापस लाया जाए। हमारी कोशिश है कोयटा ज़ियारत रोड भी दो रोया किया जाए। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं दुश्मन की ख्वाहिश मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। बाढ़ लगाने से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कम हुई, पाकिस्तान में अमन आया और दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद सईद का कहना था चंद लोग ज़ाती मफाद को मुल्क पर तरजीह दे रहे हैं। 27 फरवरी को सिर्फ अफवाज और हुकूमत नहीं हर पाकिस्तानी की जीत थी, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान की जीत मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इंडिया का ग्रेटर गेम प्लान आपके सामने पेश किया था, उनके बयानात आपके सामने रखे थे। इनका इत्तिफाक और इत्तिहाद क्यों है? क्या आपकी लॉबियस्ट से मुलाकात हुई है? मुलाकात में दो चीजों के ऊपर इत्तिफाक हुआ है। बैरूनी ताकतों की ख्वाहिश है पाकिस्तानी इदारों को टारगेट करना और अपोजिशन की ख्वाहिश है एनआरओ। जो लॉबियस्ट से आपकी मुलाकात हुई थी वो दो नुकात क्या उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है? पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कम हुई, आईडीज में कमी आई, स्मगलिंग में कमी आई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पे जब फेंसिंग का काम हुआ तो क्या पाकिस्तान में अमन आया? पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ा और दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे, जो दूसरों की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते थे, वो तमाम उनकी ख्वाहिशात जो है नाकामी का सामना पड़ा। जिन्होंने पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की, मेरा उनसे सवाल है कि आपने ये किसको खुश करने के लिए ये किया? इंडिया का मंसूबा और आजाद बलूचिस्तान का नारा किसको खुश करने के लिए आपने? वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। कौम नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क समझती है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। कौम नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी ये मानना पड़ेगा। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ जमहूरियत की जीम और नजरियाती के नून से भी नावाकिफ हैं। उनको जब माल बनाने का मौका ना मिले तो मुल्क को भी बेचने से दुरेक नहीं करेंगे। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा नवाज शरीफ के नजदीक जमहूरियत सिर्फ आले शरीफ की नस्ल दर नस्ल गुलामी और माल बनाओ का नाम है। नवाज शरीफ को जब माल बनाने का मौका ना मिले तो मुल्क को बेचने से भी दरेक नहीं करेंगे। ये जमहूरियत के जाली अलंबरदारों की असलियत है। चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत की गंदुम पॉलिसी को शदीद अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अब इस्लामाबाद की तरफ चलने का वक्त आ गया। हम मौलाना की तरह धरना नहीं देंगे और ना ही वापस आएंगे। हुकूमत की सोनामी गुजर गई, अब आप अवामी सोनामी देखेंगे और आपको इस्लामाबाद में भी पनाह नहीं मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि पीडीएम अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे।
कीमतों में कमी नहीं करोगे तो हम आगे बढ़कर गिरेबान में हाथ डालेंगे। क्रिकेट खेलना कुछ और काम है और हुकूमत करना कुछ और काम है। पाकिस्तान अमरीकी निज़ाम के लिए नहीं, इस्लामी निज़ाम के लिए बना था। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से पुलवामा हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के इशारे को कतई तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि फरवरी 2019 में पुलवामा हमले का बुराह रास्त फायदा बीजेपी हुकूमत ने उठाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज चौधरी ने एक बयान में कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज की तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब का हवाला दिया था। अपनी कमज़ोरियों और नाकामियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना बीजेपी क़यादत की खसलत है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा रहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पुलवामा हमले और पाकिस्तान मुखालिफ इंतखाबी मुहिम के बाद बीजेपी को लोकसभा में बड़ी कामयाबी मिली। भारत पुलवामा हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई भी सबूत नहीं पेश कर सका। बीजेपी अपनी मुल्क की सियासत खुसूसन इलेक्शन में पाकिस्तान को घसीटना बंद करे। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 17 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,823 हो गई। मजीद 101,977 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,33,970 हो गए। 3,14,555 मरीज सेहतियाब, जबकि ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 12,592 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 17 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,362, सिंध में 2,627, खैबर पख्तूनख्वा में 1,277, बलूचिस्तान में 151, गिलगित बल्तिस्तान में 92, आज़ाद कश्मीर में 92 और इस्लामाबाद में 222 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 973 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,04,271, सिंध में 1,45,851, खैबर पख्तूनख्वा में 39,564, बलूचिस्तान में 15,920, गिलगित बल्तिस्तान में 4,261, इस्लामाबाद में 19,970, आज़ाद कश्मीर में 4,133 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,02,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4,65,00,000 हो गई, जबकि 3,36,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। मौजी कोरोना वायरस के बाद जारी है। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अमेरिका में 2,36,000, ब्राज़ील में 1,60,000, भारत में 1,22,000, मैक्सिको में 92,000, रूस में 28,000, तुर्की में 10,252, ईरान में 35,300, अफगानिस्तान में 1,525 और सऊदी अरब में 5,402 अमवात हो चुकी हैं। इंतखाबात से कबल अमरीका में सियासी पारा बुलंदियों को छूने लगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हरीफ जो बाइडन की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हरीफ जो बाइडन को दलदल का कीड़ा करार दे दिया, तो जो बाइडन भी कहां पीछे रहने वाले थे। इंतखाबी रैली से खिताब में सदर ट्रंप को रूसी सदर का कुत्ता करार दे दिया। कहते हैं ट्रंप आवाम को बड़ी तादाद में वोट डालने से नहीं रोक सकते। आवाम जमहूरियत वापस लेकर आएंगे। ट्रंप को बोरिया बिस्तर गोल करके घर जाना होगा। सदर ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा और नीटो भी मजाक उड़ाते हैं। ट्रंप को चाहिए था कि रूसी सदर को चैलेंज करते, मगर वो खुद प्यूटन का कुत्ता बने हुए हैं। कनाडा में हैलोवीन त्यौहार के दौरान तलवार बरादर शख्स ने राहगीरों पर हमला कर दिया। हमले में 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने मौके से ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तलवार बरदार शख्स ने कनाडा के शहर पार्लियामेंट में राहगीरों पर हमला कर दिया। हमले में सड़क पर जाते 2 अफराद को हलाक और 5 को जख्मी कर दिया। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया और लाशों
और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मुलजिम को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक तहकीक भी जारी है। कोरोना वायरस में कमी के बाद सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों को उम्रा अदायगी की इजाज़त दे दी। SOPs के तहत 20,000 गैर मुल्की मोतमरीन उम्रे का फरीज़ा अदा कर सकेंगे। सऊदी अरब के महकमा मजहबी अमूर ने कोरोना वायरस में कमी के बाद गैर मुल्कियों को उम्रे की अदायगी की इजाज़त दे दी। सऊदी हुकूमत की इजाज़त के बाद गैर मुल्की उम्रा अदायगी के लिए बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए। SOPs के तहत रोज़ाना 20,000 उम्रा ज़ायरीन और 60,000 अफराद नमाज बाजमात अदा करने के साथ साथ ज़ियारत भी कर सकेंगे। सऊदी महकमा मजहबी अमूर की जानिब से उम्रा अदायगी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमरीकी दवा साज कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के तजर्बाती टेस्ट करने का ऐलान कर दिया। कंपनी के मुताबिक इब्तदाई मरहले में दवा का इस्तेमाल 12 से 18 साल के नौजवानों पर किया जाएगा। अमरीकी दवा साज कंपनी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। वैक्सीन के इब्तदाई तजुर्बाती टेस्ट कम उम्र नौजवानों पर किए जाएंगे। कंपनी साइंटिस्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की जल्द तकमील तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद है वैक्सीन के नताइज मुतासर कन होंगे। कोशिश है कि वैक्सीन जल्द दुनिया भर में दस्तयाब हो। फ्रांस के शहर लियो में घात लगाए मुसल्ला शख्स ने गिरजा घर के बाहर एक पादरी को गोली मार दी। पादरी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फ्रांसीसी शहर लियो में मुसल्ला शख्स गिरजा घर से निकलने वाले पादरी पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 52 साला पादरी शदीद जख्मी हो गए। पादरी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमलावर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से मुलजिम को तलाश करके हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे एक रोजा मैच में भी शिकस्त दे दी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज ग्रीन शर्ट ने अपने नाम कर ली। जी हां, पिंडी स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे मैच में जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। जिम्बाब्वे के विकेट गिरने का सिलसिला इब्तिदा से ही शुरू हो गया और कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने जमकर ना खेल सका। सिर्फ सेन विलियम्स ने 75 जबकि ब्रेंटन टेलर ने 36 रन की इनिंग्स खेली। मेहमान टीम 40वें ओवर में 206 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से इफ्तिखार अहमद ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से हदफ के ताक़ुब में इमामुल हक और आबिद अली ने इनिंग्स का मुस्तहकम आगाज किया और पहली विकेट की शराकत में 68 रन जोड़े। आबिद अली 22 रन बनाकर आउट हुए, जबकि इमामुल हक ने 49 रन बनाए। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। दुनिया के नामवर पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार सबसे ज्यादा इंटरनेशनल वनडे मैचेस सुपरवाइज करने वाले अंपायर बन गए। अलीम डार ने पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरे वनडे में अंपायरिंग करके वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 209 मैचेस सुपरवाइज करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अलीम डार ने करियर के 210वें वनडे मैच में अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम दिए। अलीम डार का कहना था कि टेस्ट और वनडे की लिस्ट में टॉप पर आना उनके लिए एजाज की बात है। साइकिलिंग का बैनुल-अक़वामी मुकाबला बलूचिस्तान ने अपने नाम कर लिया। बल्तिस्तान और अफगानिस्तान के साइकिलिस्ट दूसरे नंबर पर रहे। दूसरी साइकिल रैली में बच्चों से बड़ों तक 20 साइकिलिस्ट ने शिरकत की। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल सेक्रेटरी वकार अली खान ने इस्लामाबाद, मरी और फिर वापसी तक रेस का इफ्तिताह किया। रेस में 4 सूबों और दीगर ममालिक के साइकिलिस्ट ने शिरकत की। बलूचिस्तान के अब्दुल वाहिद ने पहली, बल्तिस्तान के हसन अदनान ने दूसरी, जबकि अफगानिस्तान के फरशाद
इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं, जिला मालाकंड की तहसील दरगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से कसीर तादाद में लोग मुसाफी होकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। देखते हैं शहाब खटक की ये रिपोर्ट। जिला मलाकंड के तहसील दरगे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी शो का मुजाहिरा किया। इस मौका पर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर व साबिका वजीर खजाना हमायून खान, रहीमदाद खान, साबिका MPA सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। वर्कर्स कन्वेंशन में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मुस्ताफी होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। देखिए जी, इमरान खान की हुकूमत ने लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी। यू टर्न खान ये मशहूर है, जो दावे जो वादे इलेक्शन से पहले इसने किए थे अब उसमें बुरी तरह नाकाम हो चुके। मुल्क के अवाम महंगाई बेरोजगारी का शिकार हैं और मुश्किलात बढ़ रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में आए दिन इजाफा होता जा रहा है, जो हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने अवाम को एतमाद में लेते हुए कहा कि मुल्क का तरक्की और मुस्तकबिल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही मुंसलिक है। शहाब खटक, TV टुडे न्यूज़, दरगाह मलक। सांगड़ सनतकार राजेश कुमार और जितेंद्र कुमार ने मीडिया क्लब टंडो आदम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बाअसर अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर भत्ता मांगने के खिलाफ पुलिस को भी इत्तला दी गई, मगर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सनतकार राजेश कुमार और जितेंद्र कुमार की जानिब से मुबैना तौर पर भत्ता मांगने और ज्यादतियों के खिलाफ मीडिया क्लब टंडो आदम के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाले सनतकारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि बाअसर अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर भत्ता मांगने के खिलाफ पुलिस को भी इत्तला दी, मगर पुलिस की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया। मैं कारोबार करता हूँ टंडो आदम जो रोड पे मेरा कारोबार है। मैंने ज़मीन, मेरा पंप है पेट्रोल पंप, उसके बराबर में मैंने ज़मीन खरीदी थी, ज़मीन ली थी बशीर माकुरानी से लीज़ पे, 10 साल की लीज़ पे मैंने ली थी। उसमें मैंने भूसा जोकर होता है वो मैंने जमा किया था, तकरीबन 22,000 मन। अभी वो बाअसर लोग जो कि मुझे धमका रहे हैं और वो सुबह से लेके गाड़ियाँ खड़ी करके जो ना मेरे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भूसा हमें दे दो। वो हम अकलती हैं, हम दीवान हैं, हम लड़ नहीं सक रहे हैं, तो इसी वजह से हम बहुत परेशान हैं। और वो साहिवाल के इलाके नवासी सिक्सार में 2 बहन भाइयों को तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। मोहल्ला इदारों ने दोनों बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया। बच्चों का जिस्म आग से झुलस गया। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि मकामी ज़मींदार ने बच्चों को आग लगाई, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेकर मुलज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। अफसोस नाखबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, बच्चों को तेल छिड़क कर आग लगा दी गई है, जिससे बच्चे झुलस गए। जी हाँ, साहिवाल का ये इलाका है 6R में, जहाँ पर 2 बहन भाइयों को तेल छिड़क कर आग लगा दी गई और मोहल्लेदारों ने दोनों बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया। आपको बताएं कि बच्चों का जिस्म आग से झुलस गया है और अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि मकामी जमींदार ने बच्चों को आग लगाई। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं सामने आई और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेकर मुलज़िम को फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया है। साहिवाल से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर ये अफसोसनाक खबर सामने आई है। 2 बच्चों को, 2 बहन भाइयों को आग लगाई गई, उनका जिस्म भी झुलस गया है। दोनों बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और बच्चों का जिस्म आग से झुलस गया। अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि मकामी जमींदार ने बच्चों को आग लगाई है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं आसिफ वसल्ली से। जी आसिफ, ये बताइएगा कि बच्चों की हालत कैसी है अभी? जी बिल्कुल, बच्चों को अभी BHQ टीचर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट जारी है। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस लेते हुए RPO साहिवाल से फौरी तौर पर इस वाक़े की तफ्तीश का आगाज कर दिया है और थाना फरीदौर पुलिस ने मुल्ज़मान एक मुल्ज़िम मोहसिन को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, बल्कि दूसरे मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए थाना फरीदौर पुलिस की छापे जारी हैं। आसिफ, ये भी बताइए क्या वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद पुलिस एक्शन में आई है या नहीं?
جی ابھی تو تھانہ فریٹون پولیس اس کے وزیر پنجاب کے نوٹس کے بعد ایکشن لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ایک ملزم کی گرفتار کر لیا ہے، محسن اس کا نام ہے، اور جو جاوید نامزد ملزم ہے اس کی گرفتاری کے لیے ابھی چھاپے جاری ہیں. چھاپے جاری ہیں. بہت شکریہ محمد آصف تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. ڈیرہ غازی خان میں کروڑوں روپے کی لاگت سے شروع ہونے والا پل ڈاٹ منصوبہ تاخیر کا شکار. گھنٹوں ٹریفک بلاک رہنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا. منصوبہ تعمیرات کے دوران متبادل راستہ دستیاب نہ کرنے کی وجہ سے بلوچستان پنجاب ہیوی ٹریفک سے روڈ بند رہنا معمول بن گیا. روڈ بندش سے بین الصوبائی سبزی فروٹ ترسیل میں تاخیر سے کروڑوں روپے کا نقصان ہونے کا اندیشہ بڑھنے لگا ہے. آپ کو بتائیں کہ پل ڈاٹ کی تعمیر تاحال نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ٹریفک جیم رہنا معمول بن چکا ہے. ڈیرہ غازی خان میں کروڑوں روپے کی لاگت سے شروع ہونے والا پل ڈاٹ منصوبہ تاخیر کا شکار ہے. گھنٹوں ٹریفک بلاک رہنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد بتائیے گا منصوبہ تاحال مکمل کیوں نہیں کیا جا سکا؟ بالکل، ڈیرہ غازی خان جو چاروں صوبوں کا سنگم ہے، یہاں پر جو عوام ہے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے. راستہ بند ہونے کے باعث اور کام سست روی کا شکار ہونے کے باعث یہاں پر جو عوام ہے ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے. صبح سویرے دفاتر کو جانے والے جو افراد ہیں اور اس کے علاوہ جو اسکولوں کو جانے والے بچے ہیں وہ وہاں پر جا کر ان کے والدین جو گاڑی میں جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے، اور روڈ گھنٹوں بلاک ہونے کی وجہ سے بچے اور جو دفتر کو جانے والے افراد ہیں وہ لیٹ پہنچتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ چاروں صوبوں کا سنگم بین الصوبائی شاہراہ ہے، جس میں پورے پاکستان کی ٹریفک کا گزر ہوتا ہے وہاں سے، اور وہاں پر سبزی فروٹ کا بہت زیادہ کام ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان سے آنے والے جتنے فروٹ اور سبزی کے جو گاڑیاں آتی ہیں وہ گھنٹوں روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے ان کا کروڑوں روپے کا بھی نقصان ہوتا ہے. سجاد احمد یہ بتائیے گا انتظامیہ کا کیا کہنا ہے؟ منصوبہ کب تک مکمل کیا جائے گا؟ جی، انتظامیہ کے بار بار نوٹس میں دینے کے باوجود بھی ابھی تک ٹھیکیدار نے کسی قسم کا کوئی یہاں پر متبادل